السلام علیکم دوستو، میں ہوں وقار راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلائنگ ٹی وی۔ آج ہم ایک نہایت ہی خوبصورت ملک آسٹریلیا کی سیر کریں گے اور تاریخی لحاظ سے آسٹریلیا کے بارے میں چند اہم معلومات میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آسٹریلیا کا نام لاطینی زبان کے لفظ آسٹرالیس سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے جنوب میں واقع۔ 76,92,024 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا آسٹریلیا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے۔ آسٹریلیا کی آبادی 2,50,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے آسٹریلیا دنیا میں 51 نمبر پر آتا ہے۔ ایک بہت بڑے رقبے پر پھیلے ہونے کی وجہ سے آسٹریلیا ایک جزیرہ نما براعظم کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق آسٹریلیا میں انسان 40 سے 50,000 سال پہلے آ کر آباد ہوئے۔ آسٹریلیا کے ہمسایہ ممالک میں انڈونیشیا اور نیوزی لینڈ کے ممالک ہیں۔ شمال کی طرف سے یورپی مہم جوؤں اور تاجروں نے 17ویں صدی میں آسٹریلیا آنا شروع کیا۔ آسٹریلیا کو ہالینڈ کے جہازراں ولیم جونز نے دریافت کیا۔ 17ویں صدی میں ہالینڈ کے لوگوں نے آسٹریلیا کے جزیروں کے نقشے بنائے اور اسے نیو ہالینڈ کا نام دیا، لیکن آباد کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی۔ 1770 میں جیمز کوک آسٹریلیا پہنچا اور اس نے آسٹریلیا کے مشرقی ساحل کا نقشہ بنایا اور اسے نیو ساؤتھ ویلز کا نام دیا۔ جب یورپی لوگ آسٹریلیا میں آ کر آباد ہوئے تو اس وقت آسٹریلیا کی مقامی آبادی 3,50,000 افراد پر مشتمل تھی۔ مقامی لوگوں کی آبادی 150 سال کے دوران ڈرامائی حد تک کم ہو گئی، جس کی وجہ یورپی لوگوں کی زبردستی آمد بھی ہو سکتی ہے۔ 1850 میں سونے کی تلاش میں آسٹریلیا میں دوڑ شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں چھوٹے پیمانے پر بغاوتیں بھی ہوئیں۔ ویسٹ منسٹر کے 1931 کے قانون کے مطابق آسٹریلیا اور انگلینڈ کے آئینی تعلقات بالکل ختم ہو گئے۔ 1942 میں انگلینڈ کی ایشیا میں شکست اور جاپان کے حملے کے خدشے کے پیش نظر آسٹریلیا نے امریکہ کو اپنا مددگار بنایا۔ 1951 سے اب تک آسٹریلیا امریکہ کا باقاعدہ فوجی حلیف سمجھا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ سے بہت زیادہ تارکین وطن آسٹریلیا آ کر آباد ہوئے۔ 1970 میں آسٹریلیا کی سفید آسٹریلیا پالیسی کے خاتمے کے بعد ایشیا اور دوسرے غیر یورپی ممالک سے لوگ آسٹریلیا آنا شروع ہوئے۔ آسٹریلیا کا بہت سارا حصہ بنجر اور غیر آباد ہے۔ آسٹریلیا کو میگا ڈائیورسٹی ملک بھی بولا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کی قومی زبان انگلش ہے۔ 1901 سے 1927 تک فیڈریشن آف آسٹریلیا کا دارالخلافہ میلبرن تھا۔ 1927 میں آسٹریلیا کا دارالخلافہ تبدیل کر کے کینبرا کو نیا دارالخلافہ بنایا گیا، جو کہ آج تک آسٹریلیا کا دارالحکومت ہے۔ کینبرا آسٹریلیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما شہر ہے، جبکہ اوورآل یہ ملک کا 8واں بڑا شہر ہے۔ یہ شہر آسٹریلیا کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ کینبرا سے 280 کلومیٹر جنوب مغرب کی طرف سڈنی کا شہر واقع ہے، جبکہ 660 کلومیٹر شمال مشرق میں میلبرن واقع ہے۔ اس شہر کی آبادی 4,20,000 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ 814.2 مربع کلومیٹر پر یہ شہر پھیلا ہوا ہے۔ کینبرا کو آسٹریلیا کا دارالخلافہ بنانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سڈنی اور میلبرن اس وقت دارالخلافہ بننے کے لیے ایک دوسرے کی حریف تھے، اس لیے ایک نیا شہر تعمیر کر کے اس کو آسٹریلیا کا دارالخلافہ بنایا گیا۔ اب ذکر کرتے ہیں کینبرا میں واقع کچھ سیاحتی مقامات کا۔ آسٹریلین وار میموریل ورلڈ وار 2 کے درمیان بنایا گیا۔ یہ مونیومنٹ ایک نہایت پیچیدہ شکل کا حامل ہے۔ یہ مونیومنٹ آسٹریلیا کے ورلڈ وار 2 کی یادگار ہے۔ اس جگہ پر لائبریری، میوزیم اور آرٹ گیلری بھی واقع ہے۔ میوزیم آف آسٹریلین ڈیموکریسی ایٹ اولڈ پارلیمنٹ ہاؤس آسٹریلیا کے نیو پارلیمنٹ ہاؤس سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ یہ عمارت 1927 میں کینبرا میں تعمیر کی گئی اور 1988 میں نیو پارلیمنٹ ہاؤس کی تعمیر کے بعد اس عمارت کو میوزیم کی شکل دے دی گئی۔ لیک برلے گریفن دارالخلافہ کینبرا کا خاصہ ہے۔ یہ مصنوعی جھیل سن 1912 میں بنائی گئی ہے۔ یہ جھیل مقامی اور بین الاقوامی سیاحوں کی بہت زیادہ توجہ کا مرکز رہتی ہے۔ نیشنل گیلری آف آسٹریلیا برلے گریفن جھیل کے ساحل پر واقع ہے۔ چوکور شکل کی کنکریٹ سے بنی ہوئی اس عمارت کا افتتاح 1982 میں ملکہ الزبتھ II نے کیا تھا۔ یہ گیلری پورا سال کرسمس ڈے کے علاوہ کھلی رہتی ہے۔
इस गैलरी का सियाह सुबह 10 से शाम 5 बजे तक विजिट कर सकते हैं। माउंट एनिजाइल लुकआउट शहर में वाक़या एक नहायत ही काबिल दीद जगह है। ऑस्ट्रेलिया वार मेमोरियल से माउंट एनिजाइल लुकआउट की तरफ एक पुख्ता रास्ता तामीर किया गया है। ये रास्ता तकरीबन 2 किलोमीटर बनता है। इस रास्ते में ऑस्ट्रेलिया की जंग से मुतल्लिक कुछ यादगारें भी नस्ब की गई हैं, जहां पर सियाह रुक कर उनका नज़ारा कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन नेशनल बोटैनिक गार्डन्स सिटी सेंटर से आधा किलोमीटर मगरिब की तरफ वाक़या हैं। ये बाग तकरीबन 50 एकड़ के रकबा पर फैला हुआ है। सियाह यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली मुख्तलिफ नबातात भी देख सकते हैं। ये बाग परिंदों और तितलियों के लिए एक जन्नत से कम नहीं। सियाह यहाँ से ब्लैक माउंटेन नेशनल पार्क का नज़ारा भी कर सकते हैं। नेशनल जू एंड एक्वेरियम ऑस्ट्रेलिया का वाहिद इकट्ठा जू और एक्वेरियम है। यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर बहुत सारे सियाह सफर करते हैं और यहाँ पर पाए जाने वाले जानवरों का नज़ारा करते हैं। नेशनल एक्वेरियम में मुख्तलिफ इकसाम की मछलियाँ रखी गई हैं। इसके अलावा चिड़ियाघर में बहुत सारी इकसाम के जानवर मौजूद हैं, जिनमें शेर, चीते, रीछ और बहुत से जानवर शामिल हैं। ये चिड़ियाघर सिटी सेंटर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर वाक़या है। हालिया एक सर्वे में ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का सबसे बेहतरीन रिहायशी मुल्क करार दिया गया है। पिछले 3 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया इस लिस्ट में पहले नंबर पर आ रहा है। यही अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलियन सबसे अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहरियों को तालीम, सेहत और खाने पीने की अच्छी सहूलियात मुयस्सर हैं। ऑस्ट्रेलिया में वाक़या सबसे ऊंची चोटी माउंट कोइसिजू है। ये चोटी 7310 फुट बुलंद है। ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ इकसाम के अर्जी मनाजिर हैं, जिनमें शहरी, देहाती, पहाड़ी, सहराई और बारिशी इलाके मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के 7 मिलियन से ज़्यादा रकबे पर यानी 91% इलाके पर आबाई सब्जियां उगती हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुल 16 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ऑस्ट्रेलियन फॉसिल मैमल साइट इस जगह को 1994 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा करार दिया गया, जहां पर मुख्तलिफ इकसाम के जानवरों की आसार कदीमा से मुतल्लिक बाक़ियात पाई जाती हैं। जानवरों की ये बाक़ियात कैनोज़ोइक एरा की हैं। फ्रेजर आइलैंड 1992 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा करार दिया गया। ये जजीरा दुनिया का सबसे बड़ा रेतला जजीरा है। ये जजीरा क्वीनलैंड के सूबे में वाक़या है, जो कि पहले ही अपनी खूबसूरती की एक मुनफरिद पहचान रखता है। साइंसी तहकीक से यह अंदाज़ा लगाया गया है कि यहाँ पर पाई जाने वाली रेत 7,50,000 साल से ज़मीन में होने वाली तब्दीलियों की वजह से कुदरती तौर पर वजूद में आई। गोंडवाना रेन फॉरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन जंगलात को 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा करार दिया गया। ये कुदरती जंगलात खित्ते में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बेहतरीन मकाम है। गोंडवाना रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे महफूज इलाके हैं। इन जंगलात में तकरीबन 200 मुख्तलिफ अक़साम के नबातात और हैवानात पाए जाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया में सबसे बड़ा पथरीला साहिल है, जहां पर गुंगे पाए जाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा भी है। ये मकाम 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बनाया गया। इस मकाम पर 3000 के करीब घुंगे पाए जाते हैं। ग्रेट ब्लू माउंटेन एरिया न्यू साउथ वेल्स में एक कुदरती मकाम है। इस जगह को सन 2000 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा करार दिया गया। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के रेतले पत्थर, हमवार जगह, घाटियां और जंगलात में एक्वाक्लिप्टस के दरख्त पाए जाते हैं। इस जंगल में दुनिया में सबसे ज्यादा एक्वाक्लिप्टस के दरख्त की अक़साम पाई जाती हैं। इस मकाम को 8 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। काकेडू नेशनल पार्क को 1981 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा करार दिया गया। काकेडू नेशनल पार्क की गीली जमीन यहाँ की सबसे नुमाया चीज है, जो कि पार्क के कुल रकबे का 3रा हिस्सा बनती है। यह मुकाम 40,000 साल पुराना है। रॉयल एग्जीबिशन बिल्डिंग एंड कार्लटन गार्डन्स को 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा करार दिया गया। ये इमारत कार्लटन के शहर में वाक़या है, जो कि मेलबर्न से कुछ फासले पर वाक़या है। ये इमारत दुनिया में सबसे पुरानी नुमाइशी बिल्डिंग है। इस इमारत के गिर्द एक बाग भी वाक़या है। सिडनी ओपेरा हाउस 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा करार दिया गया। सिडनी ओपेरा हाउस अपने मुख्तलिफ फन तामीर की वजह से बहुत मशहूर है। ये जगह सिडनी हार्बर के साथ न्यू साउथ वेल्स में वाक़या है। ऑस्ट्रेलिया में कुल 378 जानवरों की इकसाम
828 परिंदों की इकसाम, 4000 के करीब मछलियों की इकसाम, 3000 छिपकलियों की इकसाम और 140 मुख्तलिफ इकसाम के सांप पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जानवरों और परिंदों की इकसाम 80% से ज्यादा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जानवरों में सबसे मशहूर कैंगरू, कोआला, डींगू और वोम्बैट हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली हिलर झील पिंक रंग की है और साइंसदान आज दिन तक ये पता लगाने में नाकाम रहे हैं कि इस झील का रंग पिंक क्यों है। दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों की 10 इकसाम ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। दुनिया में सबसे साफ शफाफ आबो हवा तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज की तादाद इंसानों से ज्यादा है और ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर और कौमी निशान भी कैंगरू है। 2 टांगों पर चलने वाला यह जानवर दुनिया में पाए जाने वाले जानवरों में सबसे मुनफरिद किस्म का जानवर है। कैंगरू अपने बच्चे को अपने पेट के साथ एक थैली में महफूज रखता है। ऑस्ट्रेलिया ऊंटों की एक बहुत ज्यादा तादाद सऊदी अरब से बरामद करता है। ऑस्ट्रेलिया में ऊंटों की तादाद कोआलास से 10 गुना ज्यादा है। बरतानवी नौ आबादकारों के आने से पहले ऑस्ट्रेलिया में कोआलास की तादाद 10 मिलियन से ज्यादा थी, जो कि अब कम होकर सिर्फ 43,000 रह गई है। बर्निंग माउंटेन ऑस्ट्रेलिया दुनिया में वैध जेर जमीन कुदरती आग जल रही है। ये आग तकरीबन 6000 साल से मुसलसल जल रही है। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।